Very good afternoon to respected dignitaries, governing body members of RAV, Director RAV, Dr. Vandana Siroha Ma'am, Gurujans. I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. I, Dr. Garima Singh, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for sustenance of this series. Respected Vaidya Shri Devendra Trigunaji, President of GB RAV, Respected Vaidya Shri Rajesh Koteja Sir, Secretary, Ministry of Ayush, Respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director RAV. Today's guest speaker is Dr. Girish Tillu Sir, Assistant Professor at Savitribai Phule, Pune University, Maharashtra, who has joined us today in the 250th episode of this knowledge voyage. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantari. Namami Dhanvantarimaadidevam Surar Surarvanditpadas Lokinjaran Bhaivrityunasham Dhataramisham Chadinam. Om Dhanvantaraya Namah. Now I would like to introduce today's expert, Dr. Girish Tillu Sir, who is going to throw light on the topic how to write a clinical research paper. Dr. Girish Tillu Sir is an assistant professor at Savitribai Phule, Pune University, with over 23 years of interdisciplinary research experience in Ayurveda and integrative health sciences. He has begun his career under the Council of Scientific and Industrial Research and later served at Center for Development of Advanced Computing, contributing to health informatics and earning a US patent. He has led more than 20 clinical trials, guided numerous postgraduate and doctoral scholars, and authored several research papers and books. As executive editor of the Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, he actively contributes to research, policy development, and advancement of the Ayush and integrative healthcare. Now, I would like to invite Sir to proceed with the lecture. नमस्कार। ये ज्ञान गंगा का अक्षुण्ण प्रवाह है और हम वीकली वेबिनार सीरीज में 250वां ये सेशन है और इस सेशन में शामिल होने का मुझे भाग्य मिला है, तो इसलिए मैं आरएवी का पहले ही धन्यवाद देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और एक आयुर्वेद का विद्यार्थी होते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंसेस सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में कुछ काम करने का भी मौका मिला। इसमें आज मैं आपके सामने आयुर्वेद क्लिनिशियंस या आयुर्वेद के गुरु और उनके साथ काम करने वाले शिष्य क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावना है, इसके कुछ मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। इस आज के सेशन में कई गणमान्य सीनियर क्लिनिशियंस हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। वैद्य गहुकर जी है, वैद्य नेवपुरकर जी है, वैद्य जोशी जी है, वैद्य उपेंद्र जी है कि जो हमारे जर्नल के भी रिव्यूअर रहे हैं, वैद्य विवेक साने जी है और कई सारे हैं। मैं सबको तो मेरा पहचानता नहीं हूँ, लेकिन कमल बानिक जी जैसा बोलते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा जो है ये आयुर्वेद को अक्षुण्ण बनाने वाली एक यंत्रणा है और उस गुरु शिष्य परंपरा के हम सब उसमें शामिल होने का हमें सौभाग्य मिला है। हमें पता है कि आयुर्वेद का जो पहचान है ये बहुत बदल रही है, या आयुर्वेद की आवश्यकता पाश्चात्य देशों में या हिंदुस्तान में भी बहुत आवश्यक हो रही है।
और इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों के लिए अभी ज़्यादा संधि है, अपॉर्चुनिटीज़ है। और जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आती है। More opportunities, they also add more responsibility. Uh, Hence, there are so many opportunities and we can do many things. Please feel free to add your comments, questions, so that we will address those comments and questions during my presentation. Let us have this as an interactive session. How to write a clinical research paper. मुझे पता है कि हम मुख्यतः क्लिनिशियंस हैं। क्लिनिशियंस का उद्देश्य ये पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ये होता है, एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वम् व्याधेस्तत्व परिज्ञानम वेदनायाश्च निग्रह, ये तो पहले ही है। लेकिन क्लिनिक में और हम क्या कर सकते हैं, क्या संभावना है, उसका भी एक थोड़ा परामर्श लेने का प्रयत्न है। कुछ उसमें मेरे अनुभव के मर्यादा के कारण अगर कुछ बातें उसमें कम कम है या कुछ न्यून है, तो प्लीज आप उसमें उसका पूर्ण कीजिए, ये प्रार्थना है। Although I'm involved in various projects, institutions, today I'm going to talk as a researcher, a Vaidya. We all know the world is becoming a sick planet, and there are many things that uh, that tells us the severity of the ailing world, जिसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है। लैंसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है और उसमें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज करके एक बहुत व्यापक एक प्रोग्राम चला है कि जो दुनिया के सामने क्या क्या डिसऑर्डर का स्टेटस है वो सिस्टमैटिक उसका अभ्यास करके वो प्रसिद्ध करते हैं। लेकिन ये अभी चैलेंजेस है कि more than 90% people they have some or other problem. More than 1/3 of the people they have more than 5 plus ailments. So this is the challenge of today's world. And in this situation, we are trying to make the world healthier. And Ayurveda is an approach that thinks of healthier world. When I say this, हमें स्वास्थ्य रक्षण में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं कि हम प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, रिडक्शन ऑफ रिस्क, इसमें काम ज्यादा करते नहीं, इसलिए डिसीज का बर्डन बढ़ता है। तो इसलिए हमें आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः, इसमें हम काम करते हैं, लेकिन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण इसमें भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद की एक विशेषता रही है कि जैसा कमल जी ने बोला कि अक्षुण्ण परंपरा रही है, वो इसलिए रही है कि हम युगानुरूप उसमें कुछ बदल भी कर रहे हैं। और आयुर्वेद की विशेषता यह है कि शाश्वत तत्व लेकिन युगानुरूप तंत्र, principles and practices. Principles are the same, but we derive so many practices, as Vriddha Bhagavata says, Yuganurupo Sandarbha Vibhagena Karishate. This has been our uniqueness, and hence we also need to change something in our practice in order to make the change according to need of the time. You must have observed, all the clinicians, that the students that you used to interact with them 20 years ago and the present students that you are working with them, they are different. They have learned more biology. They are more smart. They're using technology with a very great extent, and hence, considering all those aspects, we may probably need our something, our practice. When we say that Ayurveda can make the world healthier, we have miles to go. हमें बहुत
अभी मार्गक्रमण करना है उसके बारे में। और आयुर्वेदा के क्लिनिशियंस का उसमें मेजर रोल रहा है, क्योंकि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, उसमें क्लिनिशियन की भूमिका बहुत अहम रही है। आयुर्वेद की परंपरा अभी तक अक्षुण्ण रखने में और उसको बढ़ाने में, और इसके आगे भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा। Why Ayurvedic practitioners should read journals? तो मैंने इस टॉक का, इस सेशन का तीन तीन विषयों में विभाजन हो सकता है। एक तो है रीड, पढ़ना या अवगत होना। दूसरा है डू, करना या हमारे क्लिनिक में क्या करना चाहिए। और तीसरा है लिखना, रीड, डू एंड राइट। First of all, why Ayurved practitioners should read journals? Everyone in this audience is very well versed in reading Samhitas, and मुझे पता है कई सारे क्लिनिशियंस यहाँ मौजूद है जिनको पूरी संहिताएं भी कंठस्थ है। फिर और संहिताएं तो ऐसे बोलती है, यदि हस्ति तदन्यत्र यदन्नास्ति न तत्क्वचित्। लेकिन संहिता ऐसी भी बोलती है कि कृष्णो हि लोको बुद्धिमताम् आचार्याः या एकम शास्त्रम् अधीयानो। हमें उसका विचार करते हुए जो हो रहा है उसका भी हमें पढ़ना होगा, या हमारे विद्यार्थियों को उसमें नए जो जर्नल्स है उसमें क्या हो रहा है ये पढ़ने का हमें, उसकी भी आदत हमें डालनी पड़ेगी। So this is the changing scenario of journals and changing scenario of research papers. And Ministry of Ayush establishment has affected a lot, and that has boosted the research papers, and not just research papers but even case reports and reports, those are published by Ayurved clinicians. तो डॉर्मेंट फेज से हम एक्सिलरेटेड फेज में गए हैं, और आयुर्वेद का पूरा विश्व में एक स्थान निर्माण करने के लिए सिस्टमैटिकली रिपोर्टेड केस पेपर्स, केस रिपोर्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसके कुछ उदाहरण हम आज देखेंगे। मैं इस विषय में रिसर्च ये विषय में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब एक पेपर या एक अच्छा केस रिपोर्ट पब्लिश होता है और रेप्यूटेड जर्नल में, इंडेक्स जर्नल में केस रिपोर्ट पब्लिश होता है, तो उसका बहुत मल्टी डायमेंशनल ऐसा उसका इफेक्ट होता है। एक अभी तक आयुर्वेद की जो संविदा है, जिन्होंने हमारे पास वो ज्ञान का सागर पहुंचाया, अगर उन्होंने कंठस्थ नहीं किया होता, अगर उन्होंने नहीं लिखा होता, तो आज ये शास्त्र की अवस्था क्या होती। तो कई सारे ग्रंथ है, निघंटु ग्रंथ है, कई बड़े वैद्यों ने भी अपना काम किया है, अपने बहुत अच्छे ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। शंकरदाजी शास्त्री पदे हैं, चुनेकर जी है, बहुत ऐसे शास्त्रज्ञ हैं, नानल जी है, कि जिन्होंने अपना जो ज्ञान है वो सिस्टमैटिकली वो पब्लिश करके पुस्तक रूप में, लेख या आर्टिकल रूप में पब्लिश किया है। हमें भी उस परंपरा को बढ़ावा देना पड़ेगा। नाउ आई विल जस्ट go through very quickly what is the difference between journal and magazines. In what way they are different? Everyone of us, we write articles. Writing article for a magazine and writing article for a journal is different. For example, scientific journal का उद्देश्य जो होता है कि archive and disseminate the new knowledge. तो उसमें new knowledge का ज्यादा महत्व है। और पॉपुलर मैगजीन दे प्रोवाइड मोर न्यूज, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट। ऑथरशिप for scientific journals, research academicians, practitioners, many times the authorship is of team, but here many times they are staff writers, freelance journalists or guest columnists. And सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि जो जर्नल्स और पॉपुलर मैगजीन में फर्क करता है वो है पीयर रिव्यू।
पीयर रिव्यू ये है कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट के क्रिटिक और रिव्यू लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं कि आमाबाद में वैतरण बस्ती, ऐसा एक केस रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, सबमिट किया, तो इसका रिव्यू करने वाले एक काय चिकित्सक होंगे और एक पंचकर्म तज्ञ होंगे कि जिन्होंने अपने अनुभवों का जो अपने अनुभव है उसका आधार पर अ, उस केस रिपोर्ट को वो सिस्टमैटिकली एनालाइज करेंगे, उस केस रिपोर्ट्स के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ उसमें अपने इनपुट्स देंगे, कुछ कमेंट्स करके, कुछ एडिट करके वो अच्छा कैसे हो सकता है, या कुछ उसमें न्यूनता है, लैक्यूने कुछ है क्या, इस प्रकार से वो एक्सपर्ट्स उस मैन्युस्क्रिप्ट में अपना कमेंट्स देंगे। और उसके बाद उस कमेंट्स को ऑथर को भेजा जाएगा कि रिव्यूअर्स के ये कमेंट्स है, ऑथर्स उस कमेंट्स के हिसाब से और उस बेस्ड ऑन दोस कमेंट्स, क्रिटिक, एडिट्स, author will revise that manuscript and will send it to journal once again. Then the editor will again send that manuscript to reviewers, and those experts will ensure whether whatever comments they have addressed, whether these comments are being implemented by authors, और इसके बारे में फिर editors decision देंगे कि whether to accept this article or again we should have one more round of peer review. तो peer review ये differentiate करता है कि whether that is a popular magazine or that is a scientific journal. और कई सारे उसके क्राइटेरिया होते हैं। एक तो टोन, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल, टेक्निकल, इस प्रकार से ये टोन होता है साइंटिफिक जर्नल्स का। पॉपुलर मैगजीन का टोन सब्जेक्टिव, नैरेटिव, इस प्रकार से हो सकता है। थोड़ा सा कई कई बार लोग चमत्कृतिपूर्ण भी अपना नैरेटिव बनाते हैं केस पब्लिश करने के लिए या अपने क्लिनिकल अनुभवों का प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन जर्नल में उसका ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल, इस प्रकार से टोन रखा जाता है। कंटेंट, मेनी टाइम्स साइंटिफिक जर्नल का जो कंटेंट होता है दैट इज सिस्टमैटिक डायग्राम्स, रॉ डेटा प्लॉट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, इस प्रकार से होता है। वेयरएज पॉपुलर मैगजीन आपको पता ही है। रीडरशिप जो जर्नल की होती है वो है प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हमें सबको पता है कि अभी मोबाइल पे भी बहुत से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस आ रहे हैं। ये एआई बेस्ड एप्लीकेशंस या गूगल बेस्ड सर्च, ये डेटा कहाँ से लाते हैं? तो मोस्टली डेटा लाने का, द डेटा सोर्स ऑफ मेनी ऑफ द एआई टूल्स, डेटा सोर्स ऑफ मेनी ऑफ द गूगल सर्च इंजिन्स और एनी अदर सर्च इंजिन is always the top priority is scientific journal data. And hence, when we build this scientific corpus of Ayurveda, we'll ensure that the authentic data will be available for people. So this is the importance of scientific journal. There are a few more differences. For example, declarations by authors. Whenever scientific journals they publish, authors they have to declare their affiliations with institutions, conflict of interest. For example, if a particular author is working with a particular commercial venture, that authors need to declare that this is my commercial venture and this is my role. Data sources means whatever data they are submitting, they have to submit their data sources, and hence you will find a lot of references in a scientific journal, whereas we will find no references, only affiliations and contact information is given for popular magazine, whereas in scientific journal you will find more references, who contributed for what, whether the authors they have used AI, अगर authors ने कुछ AI हद तक यूज किया है तो वो भी उसको उनका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर हमने यूज किया था। Then there are very systematically extensive mandatory references here. पॉपुलर मैगजीन में रेफरेंसेस वगैरह का कुछ होता नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक जर्नल्स इस विचारधारा को आगे लेके जाते हैं कि ये यहाँ तक हमारा इंफॉर्मेशन, यहाँ तक हमारा नॉलेज है, एंड
यहाँ तक हमारा नॉलेज है, एंड दिस पर्टिकुलर this case report is adding something more to this. तो इस प्रकार से हमारा जर्नल और मैगजीन का डिफरेंस है. Propagation of journal, it is usually targeted at professional tools or conferences, और journal का कुछ systematic metrics होता है. For example, impact factor, citations, how many other journals cite that work. तो अगर हम journal में एक article publish करते हैं और वो journal index journal है, reputed database में वो journal है, तो हमें इस प्रकार से पता चलता है कि हमारा आर्टिकल कितनी बार साइट हुआ, किस लोगों ने हमारा आर्टिकल का रेफरेंस दिया, और किस हाउ मेनी रिसर्चर्स दे डाउनलोडेड, हाउ मेनी रिसर्चर्स साइटेड, हाउ मेनी टाइम्स दैट आर्टिकल वाज ट्वीटेड, एक्सेट्रा. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल थ्रू वेरियस जर्नल मैट्रिक्स. And hence the scientific journals, they are considered as more credible information source than popular magazines. Journals, they shape science, and journal, they add knowledge to the knowledge pool. And these are the benefits of reading journals. Benefits to clinicians, for example, many times they get clinical updates, more insight उस विषय में आ सकती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है. इट एड्स टू मोर क्यूरियोसिटी, बिल्ड्स एक्सेलेंस. मैं आपको कुछ केस रिपोर्ट्स भी बताऊंगा, एंड we'll run through some of the published case reports, and then you will realize that how a typical case report is very systematically presented and published. जर्नल्स में अगर हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स, तो एक प्रकार का हमें अपने क्लिनिक में कॉन्फिडेंस भी आता है. फॉर एग्जांपल, हमें ये पढ़ने को मिलता है कि हमारे कलीग्स ने, हमारे फेलो क्लिनिशियंस ने, उसने भी इस प्रकार की केस ट्रीट किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ. और अगर एक केस आप सिस्टमैटिकली लिखते हो, तो हमारी उस विषय में अथॉरिटी भी आती है, क्योंकि जर्नल में केस जब लिखते हैं तो जर्नल के एडिटर्स या जर्नल के सिस्टम ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज, उस विषय में अभी क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रकार का हम केस रिपोर्ट्स किसी विषय में पब्लिश करते हैं, तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न मेडिकल नॉलेज एग्जिस्ट, अप टू what level modern medical treatment can go, and what is the additional benefit by our Ayurvedic treatment. So this kind of writing or this kind of expectation makes us really study this particular existing conventional biomedical domain. एक competency बढ़ती है, and hence I request the gurus to make the best use of their association with dynamic shishas or dynamic fellows working with you, so that we can build their competency. सीनियर, किसी सीनियर वैद्य का होना, सीनियर वैद्य itself, he or she is an institution. आपकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं करेगा, लेकिन आपकी अथॉरिटी को ग्लोबल स्टेज मिलने के लिए जर्नल में पब्लिश करना आवश्यक होता है. Let us read some case reports, and I thought that we should read some case reports as online case reports. So, for example, I have started. I have searched some of the case reports from Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. There are in our journal there are 181 case reports published, very systematically published case reports. For example, the latest case report is published in this April, is role of Agni Karma along with Ayurvedic medication of management with trigger thumb, then 3 years chemotherapy tolerance with concurrent Ayurvedic treatment in a metastatic lung adenocarcinoma. It's a case report with 3 years follow-up. Management of non-healing viper bite ulcer in a patient with alcoholic liver cirrhosis.
So every such case reports is really worthy to publish. एक जो ट्रेंड अभी आने लगा है कि many of the Chinese practitioners, they are also publishing their case reports. So you will find again Chinese case report, then role of standalone personalized Ayurveda management in moderating functional index, inflammatory markers, and radiological progression in ankylosing spondylitis. I'm going to present this case report in detail. So there are so many case report, और ये जो case reports है ये इस लिंक पे अवेलेबल है, जो उस लिंक को मैं वो अपने चैट बॉक्स में भी उसको दे सकता हूँ। और अगर हम इस केस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो हमें एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस भी आता है, और हम भी उसमें पब्लिश कर सकते हैं, ऐसा हमें जरूर लगेगा। Remission of ulcerative colitis, standalone management of carcinoma of vocal cord, a case report that is published by NIA researchers. Breaking the dependency cycle, case report successfully managed with hemodialysis, dependent chronic kidney disease only with Ayurvedic treatment. Chronic management of Budd-Chiari syndrome, Ayurvedic management, then conservative management, Ayurvedic management of persistent ulcers after snake bite, एक्सेट्रा। तो कई प्रकार के केस रिपोर्ट्स हैं। अगर इस केस रिपोर्ट को हमने पबमेड, ये ऑथेंटिक साइट है, जिस पबमेड इज मेंटेन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट, की जो इंडेक्स्ड जर्नल पब्लिश करते हैं। तो एक टिपिकल केस रिपोर्ट रहता कैसा है, तो इसका एक मैं अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में दूंगा कि ये केस रिपोर्ट फरवरी 2026 के इशू में पब्लिश हुआ है, और उसका टाइटल है एफिकेसी ऑफ स्टैंड अलोन पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद मैनेजमेंट। तो ये एक बहुत विशेषता है कि जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स है वो सबके लिए एक औषधि का क्या उपयोग होता है ऐसा हम देखते हैं, लेकिन हमें तो हम प्रैक्टिस में हर एक पेशेंट को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं, हर एक को अलग अलग चिकित्सा हम देते हैं, और एक पेशेंट का भी विचार हम पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सिस्टमैटिक हो। तो ये जो पर्सनलाइज मैनेजमेंट है वो फंक्शनल इंडेक्स, इंफ्लेमेटरी मार्कर्स, रेडियोलॉजिकल प्रोग्रेशन इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विद 12 इयर्स ऑफ फॉलोअप, 12 साल का फॉलोअप है। और ये भी एक आरएवी के फॉर्मर स्कॉलर रहे हैं कविता सिंह, उन्होंने ये पब्लिश किया हुआ केस रिपोर्ट है। अब यहाँ कुछ और इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ये केस रिपोर्ट कब रिसीव हुआ, कब रिवाइज हुआ, कब एक्सेप्ट हुआ, इस प्रकार की डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। और दिस इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस केस रिपोर्ट। दिस एब्स्ट्रैक्ट टेल्स अस समरी, 200 वर्ड्स समरी ऑफ द एंटायर केस, और उसका इंट्रोडक्शन है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, उसका क्या कितना डिसीज बर्डन, कितना एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वगैरह। देन पेशेंट इंफॉर्मेशन, ये केस स्टडी केस रिपोर्ट्स जब हम पब्लिश करते हैं तो उसमें मॉडर्न मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस की हर बार आवश्यकता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उनका हम सपोर्ट लेके भी पब्लिश करते हैं तो दैट एड्स टू more information to our case report. Sometimes diagnosis, many times we make a typical Ayurvedic diagnosis that cannot be supported with a detailed investigations that I know. For example, गुल्ब जैसी अवस्था है, ग्रहण जैसी अवस्था है कि जिसमें हमें बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे हमारे पास, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस की डिटेल एग्जामिनेशन की प्रिसीजन अगर हम है तो वो हम लिख सकते हैं as patient information. And then what is important and how systematically these case reports could be written, that you will see in this figure. For example, this figure has given entire data, important data from 2011 till 2021, 12 साल का
एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स का डिटेल्ड, एक पेशेंट का डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है, किस प्रकार से कब ये एग्रीवेट हुआ, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू थी, उसका एमआरआई क्या बोलता है, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस क्या बोलता है, इस प्रकार से डिटेल 12 साल का रिपोर्ट दिया है जो टाइमलाइन में है. डायग्नोस्टिक असेसमेंट, दे हैव आल्सो इंक्लूडेड some MRI of those patients. Then they have also used some questionnaires. So sometimes we can also use some questionnaire, or we can also use some tools, or simply we can use visual analog scale from 0 to 10 and tell people that what is your pain, what is your discomfort, what is your stiffness, etc. And that can be interpreted into percentage, or that can be graded according to existing tools. तो इस प्रकार से थेरापेटिक इंटरवेंशन हमने ये क्लिनिकल केस रिपोर्ट बेस्ड ऑन अवस्था विशेष ऑफ दैट डिसीज एंड आमा अवस्था में कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया गया, और आफ्टर आमापाचना अलग ट्रीटमेंट दिया गया. इस प्रकार से क्लिनिशियंस ने डिटेल किया है कि क्षीर कषाय का उन्होंने उपयोग किया इस प्रकार से. So what is the Ayurvedic formulations they were used in visit 1, 5, 7 and other visits? It has been systematically given with all details of and references of Ayurvedic formulations. You can visit such cases online. अगर इसका डिटेलिंग कितना है ये आप देख सकते हो. Administration of therapeutic intervention during follow-up period, administration of therapeutic intervention during patient care. जब अगर admit किया है, the patient were met with road traffic accident and then relapse of symptom was noticed and she wanted admitted to hospital. The hospital based care क्या हुआ था? There are real life scenarios when we have to do many different types of medication and treatment, so that can be captured, but everything is very systematically mentioned. So God is in details that we need to remember for such case reports. So this is a lot of details, external, internal therapies, etc. Follow-up and outcomes. What are clinician assessed outcomes? वैद्य संवेद्य क्या उसके आउटकम्स हैं, रुग्ण संवेद्य क्या आउटकम्स हैं, और कुछ प्रकार से उसके डिटेल इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, that are also very systematically documented. This is ankylosing spondylitis quality of life questionnaire. So we can also use some questionnaires, and those questionnaires help us make detailed assessment. और आजकल हम मोबाइल की दुनिया में हैं, और हम बहुत डायनामिक स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं. So you can also give this assignment to your students. So students can observe, students can write, student can record, but students can also tell us which relevant questionnaires or tools we can use for detailed assessment respected to a specific disease. So this is the ankylosing spondylitis quality of life scale, and many such scales they are available, and we can make use of this. Then follow-up and diagnostic outcomes of adverse effects, etc. Then discussion, हमारा क्या learning है. Thus clinical case reports, they are all about our learning, and thus what is the conclusion, and after conclusion patient perspective we insist on patient perspective. Patient perspective is a detailed narrative or detailed information according to patient's language. Nowadays we can archive patient specific outcomes, or what patients feel with our treatment, in terms of audio documentation, video documentation, written documentation. Although we include many investigations, this is also important how the patients feel after treatment. So this is the patient's narrative. Patient consent statement, written informed consent, ये उसका भी होना आवश्यक है. और ऑथर कंट्रीब्यूशन, अगर एक से ज्यादा ऑथर्स है तो उसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या है.
declaration of generative AI. Nowadays, we also expect declaration for AI. For example, they say that this manuscript has been prepared without use of generative AI or AI-assisted technologies. Funding, declaration of competing interest, acknowledgement, appendix supplementary data. So you will find a lot of other data can also be documented here as a supplementary data. For example, this patient का detailed supplementary data ये available है कि जो information या case report के these are MRI scans etc. Of course patient का identification वहाँ नहीं है तो वो निकाल के those MRI scans can be given. Again, this is references, detailed references, those are relevant to that case. They are also being given. References include relevant research papers as well as Ayurvedic text के references देना आवश्यक होता है. So एक केस का मैंने अभी जिक्र किया. I see another case, अलग केस है कि ये जो केस है ये एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने लिखी है. ये जो केस थी ये एक आरएवी के शिष्य ने लिखी थी, कविता सिंह जी. दूसरी केस है कि जो स्टूडेंट ने लिखी है. तो स्टूडेंट्स कैन आल्सो राइट सच केसेस. प्लीज रिमेंबर. यस, एनीवन? कुछ आप कहना चाहते हैं? ओके. So this is Ayurvedic management of chronic venous ulcer using dusting of powdered botanicals. case reports जिसमें एक व्रण को अवचूर्णन किया है और वो भी systematic case आप देख सकते हो किस प्रकार से before and after उसमें किया है. This is another case that is remission of ulcerative colitis with standalone Ayurveda intervention, a case report. And this is also a case report where ulcerative colitis को सिर्फ आयुर्वेद के treatment के जरिए treat किया है. And you will find what is the treatment given, what is the systematic documentation of patients case. सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है. Please unmute your mic. Yeah, okay. Thank you. So is it clear now? मेरी आवाज कब से अनम्यूट थी? For last 2 minutes.
Oh my God, last 2 minutes. Okay. So मैं कुछ केसेस आपको दिखा रहा था. Is it clear now? Yes, sir. Okay. Yes, Thank you sir. very much. Okay. तो कुछ केसेस हमने देखने के बाद मेरा ये एक ऐसा कहना है कि अवर क्लिनिक इज अवर लैबोरेटरी. अब हमारा क्लिनिक ये एक प्रयोगशाला है और उसमें हम हमेशा हर एक पेशेंट आयुर्वेद आयुर्वेद चिकित्सा का ये एक वैशिष्ट्य है कि हर एक सिचुएशन में, हर एक अवस्था में, हर रोज हमें नया विचार करना पड़ता है. नया विचार करने का अवसर प्राप्त होता है. Many times Ayurvedic treatment is not driven by a set protocol कि हमें ये ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं है. तो इसलिए अगर हम उस संवेदनशीलता से पेशेंट्स ट्रीटमेंट तो हम करते ही है, लेकिन उसी संवेदनशीलता से अगर हम डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसके बहुत फायदे हैं. और उस डॉक्यूमेंटेशन से हमें भी बहुत सीखने के लिए मिलेगा, उस संवेदनशीलता से और उस डिटेलिंग से. अगर हम डॉक्यूमेंट किए, किस डिटेलिंग से, कि जिस डिटेलिंग से हम कुछ आर्थिक नोट्स लिखते हैं, उसी डिटेलिंग से अगर हमने किया तो हमें बहुत सीखने के लिए मिलेगा. सो आवर क्लिनिक इज लैबोरेटरी. Every clinical encounter, every patient interaction is an opportunity to learning something. So we can also we can also use many questioning for generating new knowledge. We can also study the state of art knowledge, data capture, and continuous assessment. For example, measuring in real world impact, symptoms के ऊपर क्या बदलाव हुआ है, पेशेंट्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर क्या बदलाव हुआ है. Many times, especially that happens in conventional medicine, that doctors tell that ये देखिए आपके इन्वेस्टिगेशंस कम ज्यादा हुए हैं, बट पेशेंट बोलता है कि लेकिन मुझे तो कुछ सुधार नहीं है. तो इसलिए पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट पेशेंट्स फील, व्हाट पेशेंट एक्सपीरियंस. रिड्यूस मेडिकेशन. Reduce medication of Ayurvedic treatment, reduce medication of even conventional medicine. Peer communication, publication, ये भी हमें करने की आवश्यकता है. There are many questions for a practitioners. For example, what type of patients I treat? Ayurvedic प्रैक्टिस में कई बार ऐसा होता है कि we get many complicated patients. If we don't insist on systematic documentation, we don't systematically enlist them, then we will not be able to know our weaknesses and our strength. तो कभी कभी हमें कस्तूरी मृग सिंड्रोम होता है, यानी कि we don't know what we are good at, किस विषय में मैं अच्छा काम कर सकता हूं, ये हमें पता नहीं चलता. कभी कभी कई बार who are my patients who get better relief, means what are my strengths, क्या है मेरी स्ट्रेंथ. और मैं हमें ऐसा बोल सकते हैं क्या कि लास्ट ईयर मैंने इसी विषय के, इसी डिसीज के इतने पेशेंट ट्रीट किए, इतने पेशेंट मेरे पास आए, उनमें से इतने पेशेंट एक साल के बाद मेरे साथ ही रहे. व्हाट इज माय ड्रॉप आउट रेट? क्या हम हमारा ड्रॉप आउट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? ये तो शास्त्र का विषय है और ये तो व्यवसाय का भी विषय है. व्हाट इज माय ड्रॉप आउट रेट? व्हाट इज माय पेशेंट एडेरेंस रेट? कितने पेशेंट आए, उसके बाद कौन से पेशेंट का एडेरेंस, उसके पेशेंट मेरे साथ 2 साल 4 साल तक रहे, जो रहे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नहीं रहे मेरे साथ या those are not coming for follow up, what are their characteristics? Can I improve on my
my way of practice, where I need improvement. ये भी है, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। हम मेरा किस प्रकार से खुद को मेरा इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, एक सिंहावलोकन होना चाहिए मेरे प्रैक्टिस का, ये भी हम कर सकते हैं इफ वी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड रिकॉल बायस। रिकॉल बायस यानी हम भूल सकते हैं, और हम क्या भूलते हैं और क्या ध्यान में रखते हैं। तो जनरली साइकोलॉजी ऐसा बोलती है कि जो अनुकूल हमें है वो हमें ज्यादा ध्यान में रहता है, और जो प्रतिकूल है वो भूलने का हम प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए इसको रिसर्च मेथड्स में रिकॉल बायस बोला जाता है, कि हमारे पास जो सक्सेसफुल केसेस है वो हमें ज्यादा याद रहती है, और समटाइम्स और कई बार अनसक्सेसफुल केसेस वो तो हमारे पास बाद में आती ही नहीं, और जब अगर कुछ उसमें से आते हैं तो वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें हमारा इंप्रेशन, परसेप्शन क्या है, इससे भी ज्यादा हमारा डेटा क्या बोलता है, हमारे कितने पेशेंट है। तो हमारा जो केस पेपर्स है, ये केस पेपर्स ये सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में है। जैसे सुश्रुत बोलते हैं कि हस्तमेव प्रधान यंत्रम, वैसा क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे प्रधान यंत्र और तंत्र है हमारा केस पेपर। वो केस पेपर सिंपल एक पेपर रहेगा तो भी चलेगा कि जिसके ऊपर हम लिखते जाएंगे। वो केस पेपर कुछ प्रिंटेड, कुछ स्ट्रक्चर्ड केस पेपर भी हो सकता है। अगर स्ट्रक्चर्ड है तो अच्छा है। मुझे बताया गया कि आरएवी एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट आपको भेजता है। तो इस स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम सिस्टमैटिक कुछ डेटा बना के रख सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। डू आई नोटिस एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट? Did I find any innovative, unexpected finding in my practice? Are there any interaction between Ayurveda and other medications? What are effect of food, behavior, along with medication? So there are so many things that we can systematically answer, and there can be many more questions that we can ask. What I do with my case papers? केस पेपर को मैं किस प्रकार से देखता हूं, केस पेपर का मैं फिर एनालिसिस कर सकता हूं क्या? आपके पास जो स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स को केस पेपर के सिस्टमैटिक एनालिसिस का भी प्रशिक्षण हमें देना पड़ेगा। सो वी विल आल्सो रिक्वेस्ट आरएवी टू हैव मोर सेशंस विद योर स्टूडेंट्स so that we can make best use of available case papers. For example, we can make a simple list, my registry, how many new patients I have, what are their diseases, what are the treatments, and what is the follow-up, what is follow-up duration, किस व्याधि के patients का कितना follow-up मेरे पास है। Can we make those follow-up lines? For example, एक व्याधि का एक पेशेंट का मेरे पास follow-up 3 साल का है, दूसरे पेशेंट का follow-up मेरे पास 1 ही साल का है, या इस प्रकार से अगर हम follow-up का ड्यूरेशन भी मैप करते जाएंगे तो हमें नया नया बहुत कुछ हमारे ही केस पेपर में से सीखने के लिए मिलेगा। आर माय नोट्स डिटेल इनफ? जैसा डेटा साइंस में हम बोलते हैं कि डेटा एनालिसिस जब हम करने लगते हैं, many different big hospitals data or clinical practice data, then in every data analysis we are likely to get some lacunae of my own documentation. मेरे नोट्स डिटेल है क्या? मुझे आज पता नहीं है कि 2 साल के बाद ये केस रिपोर्ट मुझे पब्लिश करने के लिए अवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा। This patient which I am treating, I may get remarkable recovery, which I need to present in scientific conferences, RIV symposium. लेकिन हमें डे 1 में ये पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से ये पेशेंट का प्रोग्रेस होने वाला है।
सो इसलिए हर एक पेशेंट का डेटा हमें कभी तो भी पब्लिश करना है, कभी तो भी सादर करना है, किस कॉन्फ्रेंस में, कुछ डेटा में, कुछ डिस्कशन में, कुछ डिबेट्स में। ये हमें मानकर ही चलना पड़ेगा कि एवरी पेशेंट्स डेटा ऑफ एवरी फॉलोअप, एवरी विजिट का डेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आजकल आजकल एआई का युग है। एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ऐसा बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि इफ यू हैव मेनी मोर डेटा पॉइंट्स, जैसा हमें अच्छा कैमरा वाला, अच्छा पिक्सेल वाला मोबाइल चाहिए, यानी कि वी शुड हैव डेटा विथ मोर मोर डिटेल्ड रेजोल्यूशन, ज्यादा अच्छे पावर का कैमरा चाहिए तो अच्छा पिक्चर आ सकता है। उस प्रकार से अगर हमने डिटेल्ड डेटा पॉइंट्स हमारे केस पेपर में लिखे, वो अभी रिलेवेंट हो, नहीं हो, बाद में रिलेवेंट हो सकता है। that can include Ayurvedic, clinical, Vaidya Samvedya, Rugna Samvedya, modern, traditional, Charakokta, imaging, whatever findings we have, we should have habit of documenting that data. मैंने आपको एक केस पेपर बताया कि जो 12 साल का सिस्टमैटिक डेटा है. Can we mute? Yeah. So how I can maintain data? How I can pull data of similar patients? मैंने विशिष्ट प्रकार का बस्ती देते हुए पेशेंट्स के डेटा अगर हमने इकट्ठा किया तो आई कैन लुक एट द डेटा एंड ये छोटे सर आप वापस म्यूट हो गए हैं। हेलो. Yes, sir. Yes, sir. You are audible now, sir. Okay. If you have any questions, please feel free to ask those questions. So there can be many things that we can add in our practice. How I can maintain data. My notes are detailed enough. How I can pull data of similar patients. आपके पास जो students है, जो fellows है, उनको आप छोटे-छोटे projects दे सकते हैं कि बस्ती जिनको मैंने दिया है, उन पेशेंट का निदान क्या था, उन पेशेंट का रिकवरी किस प्रकार से हुआ, कितने दिन में वो पेशेंट रिकवर हुआ, कितने दिन के बाद मेरे पास फिर आया, उसके बाद सिम्टम्स क्या थे. सो देयर कैन बी शॉर्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप दे सकते हो आपके केस पेपर के बेस्ड. देयर इज सो केस पेपर इज गोल्ड माइन ऑफ डेटा. इस क्लिनिकल इफेक्ट कंट्रीब्यूटेड बाय अदर फैक्टर्स, और क्या क्या फैक्टर्स है कि जिनसे वो पेशेंट ठीक हुए हैं. मेरी चिकित्सा के अलावा और कुछ फैक्टर्स है क्या. व्हाट इज personalized management approach? How can I document effect of my treatment? How I can be better? उदरेदात्मनात्मनम. मुझे और क्या करना चाहिए, और क्या सीखना चाहिए. आज के गैदरिंग में भी बहुत से ऐसे कुछ वैद्य है, मुझे पता है कि जो हमेशा सीखते आए हैं. कृष्णों लोग बुद्धिमता आचार्य, नया सीखना, नया विचार करना, इसको ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. तो केस रिपोर्ट्स और क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स, केस क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सा अंतर है. और लेकिन केस रिपोर्ट्स का जो फोकस रहता है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव है. और केस रिपोर्ट्स में हम लर्निंग क्या हुआ है उनका ज्यादा हमें जिक्र करते हैं. दिस इज केस रिपोर्ट एंड दिस इज क्लिनिकल ट्रायल. तो क्लिनिकल ट्रायल में डिटेल स्टैटिस्टिक्स वगैरह लगता है, लेकिन केस रिपोर्ट में स्टैटिस्टिक्स नहीं लगता. वी कैन हैव क्वालिटेटिव डेटा, वी कैन शेयर आवर लर्निंग. केस रिपोर्ट यानी एक पेशेंट की क्लिनिकल ट्रायल ही समझ लीजिए.
क्लिनिकल ट्रायल या सिस्टमैटिक रिसर्च की जो रिगर है, जो जिसको हम बोलते हैं कि जिसका सीरियसनेस है, उसका हम हर एक पेशेंट में अगर लाएं तो वी कैन जनरेट ह्यूज डेटा, वी कैन जनरेट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स। एंड क्लिनिकल केस रिपोर्ट को रिसोर्सेस बहुत ही कम लगते हैं। रिसोर्सेस व्हाट वी नीड इज सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स इट। वेयर एज ट्रायल्स के लिए बहुत रिसोर्सेस लगते हैं यहाँ, लेकिन कुछ बायस होने की संभावना रहती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जिसका उल्लेख हम करेंगे। जैसा मैंने बताया कि वी टेंड टू रिमेम्बर आवर पॉजिटिव थिंग्स, और वी टेंड टू रिमेम्बर जो इंफॉर्मेशन हमें अच्छी लगती है वो हम that information we retain, and many times we forget the information which is not so aligned with my own thoughts or my own ideas. So this is case report. अगर केस रिपोर्ट में मिनिमल रिसोर्स भी लगते हैं, फिर भी आयुर्वेद के रिसर्च पेपर्स में केस रिपोर्ट का पब्लिकेशन बहुत ही नगण्य रहा है. So this is publication of all Ayurveda related publications. There are more than 10,000 of them, but we don't have even 400 good case reports published. तो हमें बहुत कुछ पब्लिश करना है. ये देखिए, आपने इतना अंतर है रिसर्च पेपर्स और केस रिपोर्ट्स में. केस रिपोर्ट्स, ये सिर्फ इतने ही केस रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं. कितने हुए? लेस देन 5% as केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज. तो क्लिनिशियन को बहुत opportunities है. We can add data of more case reports. Every Ayurvedic consultation is an opportunity for discovery. Ayurvedic case report have a major role in Ayurvedic evidence. Of course, case report has status of soft evidence. It is not hard evidence, but उसमें भी बहुत कुछ हमें करना चाहिए. I said there are less than 400 case reports published, and there are many neutral or negative case reports. For example, heavy metals की case reports. ऐसे लोग ज्यादा हैं कि जो पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है, वी आर नॉट इवन पब्लिश्ड गुड केस रिपोर्ट्स. even we don't have 300 plus case reports published as positive case reports efficacy या success के. लेकिन negative case report publish करने वाले बहुत से लोग हैं, तो हमें भी पॉजिटिव केस रिपोर्ट्स पब्लिश करना होगा. तो अगर हमारा पैट्रियटिज्म है, देशभक्ति, शास्त्र भक्ति का परिचय हमें सिस्टमैटिक अभ्यास से देना पड़ेगा, अभिनिवेश से नहीं. हमें अभ्यास से अपना शास्त्र का जो हमें लगाव है वो करना पड़ेगा. ये आज के समय की आवश्यकता है. तो reading and writing Ayurveda clinicians, so there are so many article types a clinician can publish. For example, Journal of Ayurveda and Integrative Medicine के आर्टिकल टाइप है. ओरिजिनल रिसर्च के लिए तो हमें लैब लगती है बहुत बार, लैबोरेटरी या क्लिनिकल से सोफिस्टिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स. लेकिन रिव्यू आर्टिकल्स, केस रिपोर्ट्स, डिटेल अकाउंट ऑफ सिंगल पेशेंट, अकाउंट ऑफ से स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, 3, 4, 10 सिमिलर केसेस अगर हम इकट्ठा करते हैं तो केस सीरीज बन जाती है. तो केस सीरीज का भी पब्लिकेशन होना चाहिए. शॉर्ट कम्युनिकेशंस, brief report of new findings, short communications, protocols, perspective, commentaries. अगर हमें डिस्कस करना है, फॉर एग्जांपल मैं पुणे से हूँ, और पुणे तो बहुत एक चर्चा का स्थान है. किसी भी विषय में कई सारे पहलू और कई सारे उसमें डिस्कशन के या वाद के विषय रहेंगे, और वो आवश्यक है. और इसके भी मीन्स फॉर आयुर्वेदिक प्रोपगेशन, फॉर आयुर्वेदिक साइंस वी नीड मोर डिबेट्स. डिबेट भी हम कर सकते हैं कि ये अप्रोच यूजफुल है या दूसरा अप्रोच यूजफुल है. मेनी टाइम्स प्रैक्टिस गाइडलाइंस, वी कैन हैव प्रैक्टिस गाइडलाइंस. लोग कह सकते हैं कि भाई मुझे अगर विशिष्ट प्रकार के बस्ती देने हैं, पुणे में या कई केरला में भी बहुत प्रकार के पंचकर्मा के विशेषतर मोर सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ कर्मा हम करते हैं. नॉर्थ इंडिया में भी बहुत
प्रकार के हम भस्म यूज करते हैं, तो उसका डिटेलिंग भी हम दे सकते हैं। कैन वी राइट अ सिंपल आर्टिकल कि त्रिभुवन कीर्ति का अवस्थिक परिणाम मैंने क्या पाया, त्रिभुवन कीर्ति की प्रैक्टिस गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, किस अवस्था में, किस अनुपात से, किस डोज में प्रयुक्त करना है, क्या नहीं करना है। हमने ऐसा किया तो उसके उपद्रव हो सकते हैं, तो ऐसे गाइडलाइंस हम पब्लिश कर सकते हैं क्या? हमें उसके लिए कुछ ज्यादा मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, इमेजिंग, एमआरआई नहीं चाहिए। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव मैं पब्लिश कर सकता हूँ क्या? तो निश्चित रूप से हमारे अनुभव भी हम पब्लिश कर सकते हैं, ना कि केस रिपोर्ट, ना कि एक्सेल शीट, ना कि डेटा। मेरा अनुभव है, मैं डिक्टेट करूंगा, मेरा स्टूडेंट उसको लिख लेगा एक बार, फिर मैं ठीक तरह से लिखा हुआ ठीक है कि नहीं करूंगा। मैं विशिष्ट रूप से चिकित्सा करता हूँ एक टिपिकल डिसीज की, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस क्या चाहिए, मॉडर्न किस प्रकार से रेफरल मेरे पास आते हैं, उसका मैं क्या करता हूं। अपने अनुभवों का सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन जब होता है तो एक्सपीरियंसेस दे गेट कन्वर्टेड इनटू इंस्टीट्यूशंस। एक्सपीरियंसेस को हम अच्छी तरह से पब्लिश कर सकते हैं। देर आर सो मेनी आर्टिकल टाइप्स, जो आप ब्लू देख रहे हो, देर आर आर्टिकल टाइप्स व्हाट अ क्लिनिशियन कैन राइट। फॉर एग्जांपल, लेटर टू एडिटर, थॉट लीडरशिप आर्टिकल, पेडागोजी, एक कंसेप्ट किस प्रकार से यूजफुल, किस प्रकार से एक कंसेप्ट बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। हम clinicians can contribute a lot to teaching। आरएबी के जो गुरु है, तो वो सब गुरु एक मूर्धन्य क्लिनिशियन है। हमें अपनी संकल्पना किस प्रकार से कॉलेज के बच्चों को सिखा सकते हैं, उस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। वी कैन हैव डिस्कशंस, डिबेट्स, initiatives, vignettes, question answer, interviews, live profile. As Journal of Ayurveda Integrative Medicine, we also insist of writing live profile। मेरे गुरु से मैंने क्या सीखा, मेरे गुरु ने नया विचार क्या किया, मेरे गुरु का कंट्रीब्यूशन क्या है, उस प्रकार से हम उनका लाइव प्रोफाइल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, संभाजी नगर में वैद्य कट्टी, बिंदु माधव कट्टी जी रहे हैं, और उनका मल परीक्षण के ऊपर बहुत डिटेल अभ्यास था। अगर उनकी लाइफ प्रोफाइल, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी चिकित्सा का स्वरूप, उनके निदान का मेथड्स, ये सार्वत्रिक होने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, तभी लोग समझेंगे। Product review, book review, there are so many things that we can write, and these are only things that we write as invited papers। editorial ये हम invited अपेक्षा करते हैं, और ओरिजिनल रिसर्च, ये दोनों, एक और दो ऐसे आर्टिकल के प्रकार अगर आपने छोड़ दिए, तो बाकी सब आर्टिकल के प्रकार सामान्य क्लिनिशियन और क्लिनिशियंस के जो शिष्य है, फेलोज है, छोटे बच्चे भी लिख सकते हैं। कई सारे मैं एडिटर के रूप में जब काम करता हूं, तो ये अनुभव आता है कि कई सारे कॉलेजेस में post graduate students they are writing। So future of Ayurveda is really bright because all those youngsters, they are now reading and they are writing। We need to be with them, we need to inspire them, and we need to support and guide them। Importance of case reports make documents to data। और मैं एक छोटा सा केस रिपोर्ट प्रेजेंट करता हूं। ये जो केस रिपोर्ट है ना, ये केस रिपोर्ट एक पेशेंट ने खुद का केस रिपोर्ट सबमिट किया है, और कि जो इंडियन मेडिकल गैजेट 1885 में ये पब्लिश हुआ है। और that case report, that patient says, this was used by me for the last 3 months, and I speak from the relief I experience as compared to the numerous other remedies। and वो अश्वगंधा के बारे में लिखता है। This is the first case report published by patient भी पब्लिश कर सकते थे, तो वैद्यों को तो करना ही चाहिए।
मैं अपना भाषण कुछ एक केस पेपर की स्टोरी सुना के समाप्त करूंगा। मुझे पता है कि आपके 5 बजे अपॉइंटमेंट्स होंगे, तो हम उसमें खत्म करेंगे उस विषय को। तो स्टोरी ऑफ अ केस रिपोर्ट, ये कोविड-19 की स्टोरी है। और सीनियर वैद्य पीएलटी गिरिजा मैडम, उन्होंने एक केस रिपोर्ट जर्नल ऑफ आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में पब्लिश किया। कोविड जब शुरू हुआ, मार्च में शुरू हुआ, हमें पता है, तो ये केस रिपोर्ट उन्होंने तुरंत बना के 17 अप्रैल को सबमिट किया, और वो मई को रिवाइज हुआ, और जून में वो एक्सेप्ट करके अवेलेबल ऑनलाइन हुआ। दिस वाज द फर्स्ट केस रिपोर्ट ऑफ आयुर्वेदा मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। ये केस रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसको 10,000 से भी ज्यादा डाउनलोड्स हुए। This is the strength of a case report if we publish on a good platform in a good journal. And then this case report of the first patient she treated with COVID-19 that got cited in next 2 years, उस पेशेंट, उस केस पेपर को कई जर्नल के, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल की ने साइट किया। जो जर्नल्स यूनाइटेड स्टेट्स 8 जर्नल्स ने, फ्रांस के 3 जर्नल्स ने, यूनाइटेड किंगडम के 3 जर्नल्स ने, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्वे, श्रीलंका, अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक, गाना, इंडोनेशिया, लग्जमबर्ग, युगांडा, यूक्रेन, यूएई, वियतनाम, कई सारे देशों के जर्नल्स ने उसको साइट किया। एक केस रिपोर्ट्स का ये परिणाम हुआ कि दैट केस रिपोर्ट gave boost to many clinicians. And then systematic documentation of case report started at a larger scale. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine ने हमें कोविड-19 का स्पेशल इशू बनाना पड़ा उसके केस रिपोर्ट के बाद, and that is butterfly effect of Ayurvedic clinicians and researchers. And this was the strength of one case report that can inspire many thousands of them, not hundred of them, but thousands of them, because such journals, those are index journals, those are reputed journals, they are available for a wider scale, and people believe those journals because they take a lot of efforts in terms of their peer review. So these are various type of journals and their background. Modern medicine के journals 30% थे, फार्मेकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक केस रिपोर्ट अगर पब्लिश होता है तो वो उसका उतना व्यापक परिणाम होता है। दिस वाज अगेन अ केस रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय Jyoti Joshi. She is a practitioner from Mumbai, and Ram Manohar ji and Unni Krishnan ji. And we received these observations on May 1st, 2021, in second wave of pandemic, when there was scarcity of oxygen cylinders. And she published कि आयुर्वेदिक केयर फॉर हाइपोक्सिक कोविड-19 पेशेंट, किस प्रकार से क्या औषध दिए, तो उस केस रिपोर्ट ने भी आयुर्वेद के विश्व में बहुत अच्छा परिणाम किया। हाउ टू राइट केस रिपोर्ट्स, दिस इज एक्सप्लोरेशन, सो देयर आर मेनी गाइडलाइंस, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केस रिपोर्ट. इट इज कॉल्ड एज carestatement.org. केस रिपोर्ट्स पब्लिश करते हुए टाइटल, कीवर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट, उस एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, पेशेंट के मेन कंसर्न्स होने चाहिए, प्राइमरी डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, आउटकम होने चाहिए, एंड देन इंट्रोडक्शन सेक्शन मेन टेक्स्ट में समरी ऑफ दिस केस रिपोर्ट एंड मे इंक्लूड वेरियस मेडिकल लिटरेचर रेफरेंसेस. पेशेंट इंफॉर्मेशन डी-आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, प्राइमरी कंसर्न्स एंड सिम्टम्स, मेडिकल, फैमिली, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, relevant past interventions, clinical findings, detailed clinical findings with clinical examination and relevant investigation, a detailed timeline, diagnostic aspects of physical examination, laboratory examination, then imaging, testing, quantification, diagnostic challenges, differential diagnosis,
right? Prognostic characteristics, therapeutic intervention. So केस रिपोर्ट लिखते वक्त हमें व्हाट तो लिखना ही है कि क्या हमने यूजफुल किया, लेकिन व्हाई भी लिखना है, क्यों, व्हाट इज द रैशनल, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड माय थॉट, ये भी हमें लिखना है. Follow up outcomes, discussion, patient perspectives, informed consent, etc. And there are many online apps available for writing case reports. So this is a Care Writer app. You can so हमारे जो फेलोज है, बच्चे हमारे साथ काम करने वाले स्टूडेंट्स है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी. तो इस टेक्नोलॉजी का भी यूज करके, ऑनलाइन ऐप का यूज करके हम केस रिपोर्ट लिख सकते हैं. इट्स इजी. As editor and reviewer, these are common likely lacunae we find in such case papers. Uniqueness or message is absent many times. Inadequate clinical documentation, क्योंकि हर बार क्लिनिशियन के पास वो सिस्टमैटिक डेटा नहीं होता. फॉर एग्जांपल, if somebody writes a case report on say वात रक्त, then reviewers will ask वात रक्त ही क्यों, कोई और डायग्नोसिस क्यों नहीं, उसका और एविडेंस आपके पास क्या है. तो अगर वो हम पहले वो कैप्चर नहीं किया होता डेटा, तो हम नहीं उसके उत्तर दे सकते हैं. तो इसलिए inadequate clinical documentation is the real cause for many things that cannot be documented properly. Then readers, we should not take readers for granted. अगर कोई हमें हम पब्लिश करते हैं, तो मैंने एक केस रिपोर्ट का जैसे उदाहरण दिया कि वो कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि वैद्य ही पढ़ेगा. तो जब हम कोई भी पब्लिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बीएमएस ग्रेजुएट के लिए है, उसी प्रकार से वही लोग हो गया, ऐसा नहीं है. सो nowadays this is a global say phenomenon. Whatever we publish, many people can access, many people can read, many people can comment. तो ये ध्यान में रखना चाहिए. Superficial literature search, many times we do that. कंफाउंडिंग फैक्टर्स एंड बायस. कंफाउंडिंग फैक्टर्स मींस मेरी जो ट्रीटमेंट है, ये मेरी ट्रीटमेंट का परिणाम तो हो ही रहा है, लेकिन और अदर क्या कर रहे हैं लोग, डाइट, बिहेवियर, योग, मॉडर्न मेडिसिन, उसका भी परिणाम होता है, तो वो भी हमें बताना चाहिए. लॉजिक और रैशनल फॉर एवरी क्लिनिकल डिसीजन, मेरा उसके संबंध में लॉजिक क्या है. स्लो रिस्पॉन्स टू पीयर रिव्यू प्रोसेस. थैंक यू. Then patient information and feedback assessment, ये भी important है, तो वो भी हमें लिखना चाहिए. Best practices of a modern वैद्य. Remember, garbage in, garbage out. अगर हम garbage पढ़ेंगे, अगर हम अच्छा नहीं लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, तो हम अच्छा नहीं लिख पाते हैं. ये चिकित्सा जैसा ही है. दुष्टकर्मा, कृतकर्मा, जो वैद्य है, जो कृतकर्मा और दुष्टकर्मा है, वो ही अच्छे कर्म कर सकता है. तो इसलिए अगर हमें अच्छा लिखना है, तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा. Read authentic journals, have journal club, read a paper thoroughly with cited papers, read a paper every day, register to PubMed alerts, cite papers, read good, do good, better way. तो अभी तक तो ऐसा बोल रहे थे कि एविडेंस बेस्ड, लेकिन आयुर्वेद जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस है. हमारी प्रैक्टिस से हम एविडेंस जनरेट कर सकते हैं. ओनली द थिंग व्हेन वी डू प्रॉपरली, वी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एंड वी राइट प्रॉपरली. तो आयुर्वेद का तो जिसका स्वास्थ्य है, वो स्वस्थ के लिए भी हमें बहुत कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस में करना चाहिए. तो ये ध्यान में रखते हुए but prevention of fire. With this, this meeting, and I thank maybe Government of India, Minister of Ayush, because of them I could learn a lot. लेकिन मैं और एक आपको कुछ बताना चाहता हूँ. सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सर आपकी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है. I'm audible, sir?
Sir, am I audible, sir? हाँ सुनाई तो दे रहा है। हेलो जी सर, जी सर। सुनाई दे रहा है, सुनाई। Dr. Girish sir, am I audible to you, sir? आप लोग इधर आ जाए, फोटो दिखाई पड़ जाएगी। कहाँ गई काजल? क्या फोटो दिख जाएगी? Audible? Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो आयुष मंत्रालय ने उसके इसलिए बहुत कुछ काम किया है और दिस इज द आयुष मिनिस्ट्रीज क्लिनिकल केस रिपोजिटरी और इस क्लिनिकल केस रिपोजिटरी में भी आप अपने केस अपलोड कर सकते हो। यू विल फाइंड मेनी केसेस ऑफ आयुर्वेद केसेस, कोविड, नॉन कोविड केसेस। तो किस प्रकार से लोगों ने लिखा है, तो ये भी आयुर्वेदिक आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी है। दूसरा एक जो आयुर्सेल करके एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि जो आयुष मिनिस्ट्री ने फंड किया है और अमृता यूनिवर्सिटी वो मेंटेन करती है। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी केस रिपोर्ट्स दैट यू कैन रीड इन योर प्रैक्टिस। तो ये आपको बता के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और कुछ चैट बॉक्स में कुछ रेफरेंस मैं ऐड करना चाहूँगा। तो दिस इज डिटेल cases on Ayurveda treatment. कुछ उसके these are the standards and guidelines for writing case report. अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो या कुछ आपका गाइडेंस है या कुछ आपको उसके ऊपर अनुभव आपके बताने हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I request if anyone having doubts, you may please ask to sir. हेलो, डॉक्टर नमस्ते साहब सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका जो प्रोसेस रहा बताने का, बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं हम आपको। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा है आपका। धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए त्रिपाठी जी। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर आपका नमस्कार। हम व्याख्यान मिले रहा। हैं और आपको देख के मुझे बहुत आनंद आया और आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और आपके जो विद्यार्थी है वो बहुत डायनामिक स्टूडेंट्स आरएवी ने सिलेक्ट करके दी है, तो उनको भी हम ये दोनों मेरे साथ हैं, ये दोनों अभी इनकी उसमें नहीं आ रहा, दोनों साथ है मेरे स्टूडेंट ये। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद सर। नमस्कार। हेलो। यस मैडम। या सर, मुझे ये पूछना है कि डू वी हैव आइडियल केस पेपर, स्टैंडर्डाइज केस पेपर फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन? फॉर एग्जांपल, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट बोलिए, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोजिंग और सीकेडी, एनीथिंग, यू नो। अगर हमारा केस पेपर यूनिफॉर्म होगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, तो वो एक क्लिनिशियन के लिए इजी होगा चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए और एक अच्छा डाटा भी तैयार हो पाएगा एज अ क्लिनिशियन, मुझे फील होता है। बिकॉज एज अ प्रैक्टिशनर बहुत दिक्कत होती है कि आप एक लॉन्ग केस जो हम लोग फाइनल ईयर काय चिकित्सा में लिखते थे उस तरह का सब कुछ रिकॉर्ड करना, मतलब वो शायद 1 घंटा इजीली लग जाता है पेशेंट का वो सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करने में। तो इस तरह की कोई व्यवस्था अगर है तो प्लीज गाइड मैडम कीजिएगा। क्या है कि वो हो सकता है और क्या है कि अपने प्रैक्टिस के अपने स्ट्रेंथ्स के अनुसार या अपने प्रैक्टिस के अनुसार ये हर एक व्यक्ति का, हर एक प्रैक्टिशनर का कॉल है कि मेरा केस पेपर किस प्रकार से हो।
और एक डिसीज का एक केस पेपर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेनी टाइम्स वी ट्रीट पीपल विथ मल्टीपल डिसीजेस. I shared the True, data true. that Yeah. more than 2/3 of all patients, they have more than sometimes five Five. five diseases. So instead of Yes. one disease one case paper, हमें क्या रखना चाहिए ध्यान में कि हर एक डिसीज की और हर एक व्याधि की अवस्था अनुरूप परीक्षण की व्यवस्था क्या हो, तो उसके ऊपर हमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि व्याधि स्पेसिफिक परीक्षण हमें क्या करना है. सामावस्था में अलग होगा, निरमावस्था में अलग होगा, एक्यूट स्टेज में अलग होगा, क्रॉनिक स्टेज में, रेमिशन में, एक्सासर्बेशन में, व्याधि संकर में, उपद्रव में अलग अलग परीक्षण करने की आवश्यकता है. तो इसलिए केस पेपर के स्ट्रक्चर से भी ज्यादा ध्यान हमें उस अवस्था में हमें क्या क्या उसका नोट डाउन करना है, उस अवस्था का पूरा डॉक्यूमेंटेशन कैसा कर सके. जैसा मैंने बोला कि ज्यादा पिक्सेल, ज्यादा क्लैरिटी, उस प्रकार से ज्यादा सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन राइट फ्रॉम क्लिनिकल, बायोमेडिकल, इन्वेस्टिगेशन, वैद्य संवेद्य, रुग्ण संवेद्य, डिटेलिंग उसका होना ये ज्यादा आवश्यक है. और क्या है कि तो जैसा बोलते हैं, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे. तो उपकरण तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके पीछे का जो विचार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. वी हैव आल्सो रिसीव्ड मेनी केस पेपर्स, मेनी गुड केस रिपोर्ट्स. दोज आर done not following any computerized documentation. नहीं है, फिर भी अच्छा हो सकता है. लाइक स्ट्रक्चर है तो वो अच्छा ही है, अच्छा ही होगा. तो आपकी बात तो सराहनीय है, लेकिन वो लिमिटिंग नहीं है. थैंक यू. Okay, sir. Thank you. नमस्कार गौकर जी, नमस्कार पाल जी, और कई सारे वैद्य यहाँ उपस्थित है. अगर आपको भी कुछ इसमें जोड़ना चाहिए तो आप जोड़िए. मैं तो एक छोटा सा आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ. बहुत सारी चीजें इस समय में उसको छूना संभव नहीं है, और मुझे बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है. लेकिन आपके अगर कुछ विचार हो तो आप रख सकते हो. डॉक्टर गिरीश आपका जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, नमस्कार सर. बहुत ही अच्छा आपका डॉक्टर जो गिरीश जी, presentation- आपने जो आज रिप्रेजेंट किया है और जो गाइडलाइन दी है वो बहुत ही सराहनीय है. शायद ऐसा लगता है कि जो क्लिनिक होता है, क्लिनिक एक लेबोरेटरी होती है और लेबोरेटरी में सब कुछ किया जा सकता है. ये Yes. आज हमें बहुत अच्छी सीख मिली है आपसे, और हम आपको वादा करते हैं कि हर स्टूडेंट जो हमारे साथ है, वो जैसे करीब 4 स्टूडेंट है, तो हम ये सोच रहे हैं कि साल में एक स्टूडेंट 5 केस पेपर अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे. आपसे वादा करता हूँ. थैंक जरूर यू, सर, थैंक यू गिरीश धन्यवाद. जी. और यही ये जो आयुष मिनिस्ट्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है कि जो पूरे विश्व में आयुर्वेद का अच्छा पोजीशनिंग आप सब लोग कर रहे हैं, और इसलिए हमें बहुत सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन और पब्लिकेशन करना पड़ेगा. धन्यवाद सर, आपका विचार बहुत ही अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू. एक्सक्यूज मी सर, Please, मैं sir. आर्य डॉक्टर कृष्ण या त्रिपति से बोल रहा हूँ सर. So it seems to be very easy when somebody is presenting how to do research and how to create data, Yes. but when it comes to the complete standardized paper, it has a number of practical difficulties. Yes, sir. But the many speakers on the platform or on online, the speaker, it is so easy and so, but when it comes to actually practical presentation, it is very, very difficult. The creating data systematically, that is the reason why we are unable to do. So the earlier question though regarding the structure she has asked, but that is for so many clinicians, it seems to be very important factor, so that it can be, the structure can be furnished, and standardization and there will be
come in future on practice. So the structure is very important, whatever the earlier questioner has asked. So after that, the very practical difficulty in for a standard publishing paper, the references, it takes a lot of time. The clinical presentation that we can do because patient is there, and we, with the help of the RAV student, we can collect the data. But when it comes to the systematic study and presenting the case, the last part, but the number of references, it is very, very difficult. We have to study a lot of things about the subject of a case. So Yes. the very difficult part. That is the reason why many successful clinical practitioners are unable to prepare a standard paper. That is my opinion. So Yes, sir. is it So- true or not? Just let me know, sir. यस सर. सो आपने जो बात कही वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तो आपने बहुत की डायग्नोसिस बता दिया कि लोग क्यों नहीं करते. तो ये तो डिफिकल्टीज उसमें है ही. लेकिन सर मैं आपको बताता हूँ कि वैद्य लोग, सबसे कठिन काम दुनिया का है जो वैद्य लोग करते हैं, वो है पेशेंट्स को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना. मैं बताऊं, आयुर्वेदीय चिकित्सा ये सबसे कठिन काम आप लोग कर रहे हैं, हम लोग करते हैं. और लिखना उससे तो बहुत ही सरल काम है. चिकित्सा का कार्य कितना कठिन है आप देखिए. हम पेशेंट देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, दोष धातु मल अग्नि के हिसाब से उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी टू एब्स्ट्रैक्शन. एक एब्स्ट्रैक्शन से हम दूसरा एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, गुणकर्म, द्रव्य गुणकर्म, चिकित्सा सूत्र. उस एब्स्ट्रैक्शन से फिर हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, एक्चुअल औषध चिकित्सा देना. सो आवर थॉट प्रोसेस, आवर ब्रेन मूव्स फ्रॉम objectivity to abstraction, abstraction to another abstraction, another abstraction to again objectivity. ये बहुत कठिन काम हम करते हैं. ये बहुत कठिन है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में ऑब्जेक्टिविटी ही ऑब्जेक्टिविटी है सब जगह. हमारा एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्टिविटी का खेल है, वो हम करते हैं. इस काम से ज्यादा कोई भी कठिन काम नहीं होता. इस काम से ज्यादा क्रिएटिव कोई भी काम नहीं है सर. तो इसलिए, और ये थोड़ा कठिन है, इसलिए ही हमें करना है. सिंपल काम तो करने वाले बहुत ही लोग हैं, उनको हम इंटेलेक्चुअल नहीं बोलेंगे. इंटेलेक्चुअल्स वही है कि जो कठिन काम करें. और चरक संहिता में, अगर हम चरक संहिता का अध्याय 8 पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मैंने अभी थोड़ा बात करने की प्रयास किया, उससे कई कॉम्प्लेक्स लेवल का काम वैद्य को अपेक्षित है. इसलिए तो चरक ने लिखा है 10 प्रकार के कारण, कर्म, कार्य योनि, कार्यफल, अनुबंध, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हर एक चीज का इतना डिस्क्रिप्शन दिया है. पंचायवी वाक्य है उसमें, फिर वाद मार्ग पद है. दर्शन शास्त्र हम सीखते हैं. किस लिए सीखते हैं? इसलिए सीखना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो शास्त्र के लिए उपयुक्त हो. हम जो कुछ कर रहे हैं वो आयुर्वेद के लिए एक एविडेंस हो. तो जब हमें ये कॉम्प्लेक्स लगेगा तो कृपया हम चरक संहिता विमानस्थान अध्याय 8 पढ़ेंगे. जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो सरल है और थोड़ा दुष्कर है, इसलिए करना है. तो ये हम सब कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं सर अच्छी तरह से. पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी आजकल कर रहे हैं, और हमें उनको इंस्पायर करना पड़ेगा. उनके पीठ थपा के, हाथ रख के, आशीर्वाद दे के हमारे साथ काम करना पड़ेगा. और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की एक वैशिष्ट्य है सर कि जहां एक्सपीरियंस और एनर्जी, बच्चों में एनर्जी है, आपके पास एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस, अनुभव और ऊर्जा का एक
दुर्लभ संगम आपके क्लिनिक में है, तो इसका उपयोग करके उस अनुभव का और ऊर्जा का सिनर्जी करके हमें आगे बढ़ना है। केस रिपोर्ट तो एक छोटी सी बात है, लेकिन कई प्रकार के काम, कई प्रकार का अनुसंधान हम क्लिनिक में कर सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. और कुछ प्रश्न है तो कृष्णैया जी आपको भी बहुत कृष्णैया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार। मन का आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आप thank you very much. And if we have discussed all these questions, then I think we can stop here and let us continue this interaction. I will also share my email ID for further communication. And we are also sharing our Ayush Center of Excellence website, so you can visit, and if you need any assistance, we are there through RAV. We work closely with RAV and Ministry of Ayush, and again thank you very much to RAV for this wonderful effort. आपके सबके उपस्थिति से मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी आशीर्वाद मिले आप सब ज्येष्ठ वैद्यों से, तो ऐसे ही आशीर्वाद मिलते रहें और ये काम निरंतर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. On behalf of the organizing committee, I would like to thank Dr. Girish Tillu, sir, for delivering such an insightful lecture. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Vaidya Devin Trigunaji, President GBRAV, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Koteja ji, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars with their presence and active participation make this webinar a successful one. Thank you, sir. Thank you. Namaskar.